আগরতলাস্থিত ত্রিপুরা পুলিশের সদর দপ্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক সম্মেলন করে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকর জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় অপরাধ হ্রাসের ক্ষেত্রে গত 20 বছরের মধ্যে 2025 সালে ত্রিপুরায় সর্বনিম্ন অপরাধের হার নথিভুক্ত হয়েছে। 2025 সালে মোট নথিভুক্ত অপরাধের সংখ্যা ছিল 3698টি, যা 2024 সালের তুলনায় 8.3% কম। একই সঙ্গে বাংলাদেশের চলমান উত্তেজনাকর পরিস্থিতি নিয়ে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকর জানান, ত্রিপুরা সম্পূর্ণ সুরক্ষিত এবং পরিস্থিতি মোকাবেলায় ত্রিপুরা পুলিশ বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে যাচ্ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে উপস্থিত ছিলেন পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরাও। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশককে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলেন, ত্রিপুরা ভারত বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্ত ঘেঁষা বাংলাদেশে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব বাড়ছে। গত কয়েক মাসে বাংলাদেশি ড্রোন উদ্ধার হয়েছে ত্রিপুরা সীমান্ত ঘেঁষা বিভিন্ন গ্রাম থেকে। উত্তরে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক সাংবাদিকদের জানান, ড্রোন উদ্ধারের পর পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। ত্রিপুরাবাসী পুরোপুরি নিরাপদ, কোনো ধরনের ঝুঁকি নেই ত্রিপুরার জনগণের। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সঙ্গে এবং গোয়েন্দা শাখার সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ত্রিপুরা পুলিশ জনগণের পুরোপুরি নিরাপত্তা বজায় রেখেছে, কোনো চিন্তার কারণ নেই। একই সঙ্গে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক বলেন, ত্রিপুরায় দুর্ঘটনা রুখতে ট্রাফিক প্রশাসনের পক্ষ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। জরিমানা এবং মামলা নেওয়া হচ্ছে বেআইনিভাবে গাড়ি বাইক চালানোর জন্য। 2025 সালে বেআইনিভাবে গাড়ি চালানো এবং বাইক চালানোর কারণে জরিমানার হার বেড়েছে 16%। 2025 সালে বেআইনিভাবে গাড়ি চালানো এবং বাইক চালানোর কারণে জরিমানার হার বেড়েছে 16%। মোট জরিমানা হয়েছে 20 কোটি 2 লক্ষ টাকা। ত্রিপুরা থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস বেঙ্গল নিউজ। মানে নেশা সামগ্রী এখানে এসছে এবং রাজ্যে প্রতিনিয়ত কোনো না কোনো জায়গা থেকে নেশা সামগ্রী আসছে, কোথাও কোথাও আটক হচ্ছে, কখনো চোরাইবাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার শহরের প্রাণকেন্দ্রে বা শহরের আশেপাশে সেগুলো ধরা পড়ছে। এই যে গোটা চক্রটা চলছে, মানে এমন তো নয় যে মানে আপনারা যাদের গ্রেফতার করছেন তারা হয়তো বা কারবারি বা ছোটখাটো কারবারি, কোনো ধরনের মাস্টার মাইন্ড বা কোনো বড় কাউকে আপনারা কি গ্রেফতার করতে পেরেছেন? বা অনেকেই ধারণা করছেন যে এর পেছনে একটা বড় পলিটিক্যাল কিং থাকতে পারে, মানে আপনাদেরও কি মনে হয় যে এর পেছনে কোনো একটা বড় পলিটিক্যাল পাওয়ার, পলিটিক্যাল কিং এর পেছনে থাকতে পারে, যাকে ধরলে হয়তো বা গোটা বিষয়টাই শেষ হয়ে যেতে পারে? देखिएगा, मैंने पहले भी बोला है, हमें एकदम क्लियर कट निर्देश है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कि जो नशा सामग्री का जो लोग इसका ट्रेड में इन्वॉल्व है, इसके ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, इनके अगेंस्ट में जीरो टॉलरेंस। कोई भी हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल कलर, इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज पोजीशन और प्लेस। जिस घटना का आपने बताया मैं उसी के बारे में बोल रहा हूँ। उसमें हमने लोगों को अरेस्ट किया है और जिन लोगों का वहाँ पर ये नहीं था, इन्वेस्टिगेशन करके उसमें एक दो कुछ किंग पिन भी अरेस्ट किए और बाकी बाहर से भी जो मेन जो सप्लायर थे वहाँ, जिसको कि बाकी स्टेट की पुलिस नहीं कर पाई थी, वो हम लोगों ने अरेस्ट किया है। और अभी भी एक, जैसा मैंने बताया, गाजियाबाद में एक आदमी ऑलरेडी हैज बीन अरेस्टेड, ही विल बी ट्रेनिंग श्योर। इसमें हम एकदम जो ये जो इस तरह के जो भी केस हैं, कोई भी ड्रग से रिलेटेड, और इस साल हमारा टारगेट जो होगा वो मेनली किंग पिन। मैं आपको जो हमने जो ये पीआर सबमिट किया है 1,16,000 ये वॉयलेशन ही है, वॉयलेशन वॉयलेटर के अगेंस्ट में किए हैं। ये जो हमने 20 करोड़ फाइन रियलाइज किया है वो वॉयलेटर्स के, तो हम कह रहे हैं कि वॉयलेशन हो रहा है एजुकेशन प्लस एनफोर्समेंट, वो दोनों ही हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। इसके अलावा अभी कुछ ही दिन पहले 5 तारीख को ऑनरेबल सीएम का मीटिंग, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खुद कंसर्न है, उन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर अभी मीटिंग की 5 तारीख को, और इसमें कई सारे डिसीजन लिए गए क्योंकि पुलिस अकेला नहीं है, बाकी सब डिपार्टमेंट मिलकर इसमें कार्य कर रहे हैं और मल्टी एजेंसी अप्रोच इसमें कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें ट्रैफिक में इम्प्रूवमेंट होगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि गाड़ियां हर साल बढ़ रही हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10% नंबर ऑफ व्हीकल्स आर इंक्रीजिंग।
अब वो जो गाड़ियां एक स्पेस में ही चल रही हैं सब, तो इसके लिए और भी जरूरी है कि अगर सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को मान के चलें तो उसमें एक्सीडेंट भी नहीं होगा, लोग टाइमली भी आप घर जा सकते हैं, ऑफिस जा सकते हैं। लेकिन ये होता है कि वायलेट करके सब लोग आगे इधर से उधर से वायलेशन करके जाना चाहते हैं, उसमें फिर ये जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन होता है, फाइन होना या पीआर सबमिट होना, ये सब होता है। या उनका क्राइटेरिया छोटे स्टेट बड़े स्टेट में सर कि पर लाख पॉपुलेशन में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो 23 में जो एक्सीडेंट हुए थे 34.6 नेशनल लेवल पे हुए थे, जबकि त्रिपुरा का एवरेज जो था 13.9 पर लाख ऑफ पॉपुलेशन था, और दैट इज 23। जब हमने इस साल का देखा तो ये फर्दर रिड्यूस हो गया 12.5 एक्सीडेंट्स पर लाख ऑफ पॉपुलेशन 2025 हमारा। सिमिलरली अगर गाड़ियों का देखा जाए कि गाड़ियां पर 10,000 पॉपुलेशन ऑफ व्हीकल्स कितने एक्सीडेंट होते हैं, तो नेशनल लेवल पे जो एवरेज था वो 11.4% था, और त्रिपुरा का ऑलरेडी लो था 8.5, लेकिन अभी ये 6 पे आ गया है, 6 एक्सीडेंट्स पर 10,000 ऑफ पॉपुलेशन। सिमिलरली पर्सन्स किल्ड जो नेशनल एवरेज है वो 12.5 पर्सन्स किल्ड पर लाख ऑफ पॉपुलेशन इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। हमारा इस साल का एवरेज जो आ रहा है 4.7 आ रहा है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ नेशनल एवरेज। मेन इसमें कहना यह है कि इस साल हमारे जो गाड़ियों में करीब नंबर ऑफ व्हीकल्स 8.11 लाख से बढ़कर 8.67 लाख हो गए 2025 में, तो करीब 8% की इंक्रीज है गाड़ियों में, जबकि हमने जो रिडक्शन किया है टोटल नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स में वो 8.82% डिस्पाइट इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स। ये हमारे लिए चैलेंज था कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कैसे कम किया जाए, क्योंकि 23, 22, 23, 24 में मार्जिनली हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। दिस इज इन लास्ट 4 years फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैज कम डाउन बाय 8% इन 2025। दूसरा, हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये हमें निर्देश है कि नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान में त्रिपुरा पुलिस को आगे बढ़ के कार्य करना है, और उसी निर्देश के अंतर्गत हम लोग नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान में सभी लोग एज ए टीम हम जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो एनफोर्समेंट हुआ है एनडीपीएस केसेस में, नार्कोटिक ड्रग्स में, इस साल हमारा एनफोर्समेंट बढ़ा है और करीब 11% बढ़ा है। आपको सभी को मालूम है कि एनडीपीएस ही एक ऐसा केस होता है जिसमें कि कंप्लेनेंट पुलिस होती है, क्योंकि हम जितना भी डिटेक्ट करते हैं, जितना भी पकड़ते हैं, फिर उसकी कंप्लेंट हम खुद कराते हैं, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं होता। तो 11% इंक्रीज हुई है हमारे डिटेक्शन में और केस रजिस्ट्रेशन में, एनडीपीएस केस रजिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि हमने ज्यादा डिटेक्शन किया इस साल एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। लास्ट ईयर जो टोटल केसेस थे 470 थे, इस बार 522, इंक्रीज ऑफ 11%। और अदर मिसलेनियस केसेस जो है उसमें 8% का रिडक्शन है। तो जैसे कि मैंने बताया, इस साल हमारे टोटल केसेस हैं 3698 एज कंपेयर टू 4033 लास्ट ईयर, रजिस्टरिंग डिक्रीज ऑफ 8.3%। और ये जो क्राइम फिगर है ये लोवेस्ट है इन लास्ट 20 इयर्स। गत 20 वर्ष में सबसे लोवेस्ट क्राइम फिगर है। नारकोटिक्स में जहां तक रिकवरी का सवाल है,
गांजा जो हमने डिटेक्ट किया, रिकवर किया, ड्राई गांजा जिसे बोलते हैं, 14% ज्यादा हमने इस साल रिकवर किया एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। कफ सिरप बोटल्स जो है 145%, डबल से भी ज्यादा इस साल हमने रिकवर की। टैबलेट्स जो आती हैं, आप कॉमन लैंग्वेज में याबा टैबलेट बोलते हैं, वो 26.37% एक्स्ट्रा एज कंपेयर टू लास्ट ईयर हमने सीज किए। फिर इसके अलावा जो सीडलिंग है, नर्सरी है, इन सब में जो हमने सीजर किया है वो ऑलमोस्ट 95%, ऑलमोस्ट डबल ऑफ लास्ट ईयर किया है, 95% मोर देन लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 8 करोड़ 23 लाख था, इस बार 16 करोड़ 3 लाख प्लांट्स एंड सैपलिंग्स। तो टोटल वैल्यू जो हमने सीजर किया है या डिस्ट्रॉय किया है प्लांट्स, नर्सरी, लास्ट ईयर था 849 करोड़, इस बार वैल्यू है उसकी 1636 करोड़, 92.7% ज्यादा है इस साल। नार्कोटिक ड्रग्स, गांजा प्लांट्स, सैपलिंग्स, ये सब। अब ये क्राइम रिडक्शन आप कैसे संभव हुआ? हम लोगों ने जो अपनी रणनीति बनाई थी उसमें ये था कि हमें ऑल आउट पब्लिक के साथ में जाके सहयोग करना है, उनसे सहयोग लेना है, और साथ ही साथ जो हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको और बढ़ाना है। तो जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ही जो प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स जो जमा होती है, 2024 में 55,696 प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट 2024 में हुई थी। इस साल 1,16,158, सो दैट इज अबाउट 109% ज्यादा प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट जो लोग वायलेशन करते हैं ट्रैफिक रूल्स, उनके अगेंस्ट में। एक तो ये एनफोर्समेंट हमने किया। फाइन मनी भी लास्ट ईयर 19.1 करोड़ था, इस बार 20.21 करोड़ है, करीब 6% का इंक्रीज है। फिर ड्राइविंग लाइसेंस जो सस्पेंशन अभी हो रहा है, लास्ट ईयर 10,890 ड्राइविंग लाइसेंस हुए थे सस्पेंड, 25 में 17,890 लाइसेंसेस सीज हुए और सस्पेंड। तो इस तरह से रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ये एनफोर्समेंट और हमारा जो प्रयास है, मीटिंग्स हैं, पब्लिक के साथ में अवेयरनेस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, थाना लेवल पे, विलेज लेवल पे, वो हमने किया, जिससे कि ये रिडक्शन संभव हो पाए। इसके अलावा जो बाकी पीआरस हमारी होती है, जैसे कि गैम्बलिंग से रिलेटेड होती है, एक्साइज एक्ट से रिलेटेड होती हैं, 107 CRPC होती है जब कोई मारपीट करने की कोशिश करता है या उसको रोकने के लिए, या फिर कोई ऑफेंडर होते हैं इस टाइप के, हैबिचुअल ऑफेंडर बोलते हैं, रिपीट ऑफेंडर, बार बार कोई क्राइम करता है, तो उन सब के अगेंस्ट इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, उनके अगेंस्ट में हमने प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट दी। तो अगर टोटल प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट देखी जाए तो गत वर्ष ये प्रोसिक्यूशन रिपोर्ट्स थी 1,06,873 और इस साल है 2,40,258, इंक्रीज ऑफ अबाउट 125%। तो हमने ये कार्य किया है कि टू प्रिवेंट द पर्सन, उसके अगेंस्ट पीआर सबमिट किया, फॉलोअप किया, उसको बाइंड डाउन किया कि वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा फ्यूचर में, अगर करेगा तो उसका बॉन्ड जो है उसकी वजह से वो जेल में भी जाना पड़ सकता है और उस पर फाइन मनी भी लगेगा। साथ ही साथ जो प्रयास हमारे हैं, प्रयास मीटिंग्स, आपको पता है हमारा जो कम्युनिटी पुलिसिंग का प्रोग्राम है, उसमें भी 42.37% का इंक्रीज हुआ। तो प्रयास मीटिंग हमारी जो हुई है 2024 में
11,972 हुई, जबकि 25 में 17,045, तो इंक्रीज ऑफ 42%। तो इस तरह से हमने अपनी जो एक रणनीति थी उसमें पुलिस अधिकारियों को एनकरेज किया, उनको गाइड किया। पहला कार्य तो था कि प्रिवेंशन किया जाए। अगर प्रिवेंशन के एफर्ट के बावजूद भी क्राइम हो गया तो इमीडिएट प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, केस रजिस्ट्रेशन, और केस रजिस्ट्रेशन के बाद में प्रॉम्प्ट इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीटिंग। और अब हम क्लोजली ट्रायल को भी हम अब मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने न्यू क्रिमिनल लॉज, अभी उनको जो है न्याय संहिता बोला जाता है, अब वो न्यू क्रिमिनल लॉ नहीं रह गए हैं क्योंकि जुलाई 2024 से इम्प्लीमेंट हुए। उनको हमने बहुत ही गंभीरता के साथ में उसको इम्प्लीमेंट किया है, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। सभी पुलिस पर्सनल्स को ट्रेंड किया है और एकदम स्मूथ तरीके से उनका इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। इस बीच में जैसे कि 2024 में यहाँ पर समस्त जो अंडरग्राउंड ग्रुप थे सभी ने जो था वो मेन स्ट्रीम में आ गए थे। उसके बाद में कुछ प्रयास नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हो रहे थे। एक ग्रुप जो था वो मिसक्रिएंट्स का वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे। आप सभी को मालूम है कि 14-15 अगस्त की नाइट में हम लोगों ने उनको में से जो उनके पास से एक्सप्लोसिव, उनके पास से डिटोनेटर वगैरह पकड़े और उनके 2 मेंबर्स को अरेस्ट किया। उसके बाद में और भी जो कुछ लोग थे उनको अरेस्ट किया। टोटल 6 लोगों को अरेस्ट किया है उसमें। तो वो एक हमारी मेजर सक्सेस ये थी। इसके अलावा गत वर्ष में 628 मोबाइल फोन्स हमने रिकवर किए हैं पब्लिक के और उनको दिए। साथ ही साथ कुछ ही दिन पहले जैसे आपने देखा होगा कि करीब 45 माइनर और मेजर्स जो अरुणाचल प्रदेश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुई थी उनको हम वहां से लेके आए हैं और यहाँ पर उनकी फैमिलीज को सपोर्ट किया है। ड्यूरिंग 25 हमने 20 किडनैप गर्ल्स जो थी, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो कि जिनको इंड्यूस करके साथ में ले जाया गया था बाहर के स्टेट्स में, उनको भी हम वापस लेके आए हैं और 23 एक्टिव पर्सन्स को उनमें भी अरेस्ट किया है। इसके अलावा हमने काफी क्लोज कोऑर्डिनेशन में बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ में कार्य किया है और हमारा प्रयास है कि फ्यूचर में भी हम जो क्राइम है उसको सभी के सहयोग से, मीडिया, पब्लिक और विभिन्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सबका सहयोग लेके हम क्राइम को प्रिवेंट कर सके, बेटर लॉ एंड ऑर्डर जो हम मेंटेन कर रहे हैं उसको फर्दर इंप्रूव कर सके और जो पब्लिक सर्विस है हमारी, बेसिकली पब्लिक को सर्विस जो है हमारी और बेटर हमारी जो दे ही रहे हैं, तो हमारा प्रयास है कि हमेशा फर्दर इंप्रूव करते रहें। लेकिन जो 2020